ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत एक दिव्योद्बोधन का एक भाग सुनेंगे तथा भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 28 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ సమాధి అనగా ఏమిటి? కేవలము తన్మయత్వంతో పడిపోవటము, లేక ఇమోషన్తో మనం కూలిపోవటము, ఏదో ఒక విధమైనటువంటి భావంతో భావ సమాధిని పొందటము, ఈ విధంగా మనం భావిస్తుంటాము. ఇది సవికల్పం కానటువంటి స్థితి లోపల ఎట్టి జాగ్రత్త స్వప్నం కానటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి యొక్క భావమని మనం భావిస్తున్నాము. समाधि का अर्थ क्या है? तन्मयता में पड़ जाना, भावुकता में घिर जाना अथवा किसी भावना की समाधि में डूब जाना, इन्हीं को हम समाधि मान रहे हैं. इसे हम जो सविकल्प की स्थिति में न हो, किसी भी प्रकार की जागृत अथवा स्वप्न की स्थिति से परे स्थिति के रूप में कल्पना कर रहे हैं. ఇది జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి యందు కూడాను సమాధి ఏకంగానే ఉంటుంటుంది. ఈ పదములు ఎంతే ఉంటున్నది దాని యొక్క అర్థం. కొంతమంది మాట్లాడుతూ సమాధిలో పడిపోయినారనుకుంటారు. ఇది ఒక ఇమోషన్ కావచ్చును, ఎక్సైట్మెంట్ కావచ్చును, లేకపోతే హిస్టీరియా కావచ్చును, లేక బలహీనత కావచ్చును, ఫిట్స్ కావచ్చు. కానీ ఇది సమాధి కాదు. సమాధి అనగా జాగ్రత్త వ్యవస్థ ఎందే చైతన్యంగా ఉంటున్న సమయం లోపలే సమచిత్తంగా మార్చుకోవటమే సమాధి. जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों स्थितियों में समाधि एक सी होती है. इन शब्दों में ही उसका अर्थ निहित है. कुछ लोग बातें करते करते समाधि में गिर पड़े हैं ऐसा मानते हैं, परंतु यह इमोशन हो सकता है, हिस्टीरिया हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, फिट्स हो सकता है, परंतु यह समाधि नहीं है. जागृतावस्था में चैतन्य की स्थिति में रहते समय में ही समचित्त को प्राप्त करना ही समाधि है. సమాధి శీతోష్ణములను సుఖ దుఃఖములను రెండింటినీ సమంగా చూసుకోవటం, నిందాస్తుతులను సర్వమును సమానంగా చూసుకోవటం, లాభ నష్టములు కూడాను సమానంగా, దీనికి పొంగక దానికి కృంగక ఉండేటువంటి స్థితియే సమాధి. కనుకనే భూతాకాశమునందును చిత్తాకాశమునందును చిదాకాశమునందును ఆనందమయుడై ఉంటుండాలి. सम प्लस धी, ठंडक और गर्मी, सुख और दुख दोनों को समान रूप में देखना, निंदा एवं प्रशंसा को समान रूप में लेना, लाभ और हानि को समान मानना, एक के लिए फूला न समाना और दूसरे में निराश न होने की स्थिति में रहना ही समाधि है. अतः भूताकाश में, चित्ताकाश में और चिदाकाश में आनंदमय होकर रहना चाहिए. ఇట్టి స్థితి అందరికీ లభించేటువంటిది కాదు. దీనికి అనేక విధములైనటువంటి విచారణ చేయాలి, సాధన సలపాలి, దైవానుగ్రహం పొందాలి. కనుక అనుగ్రహానికి పాత్రుడుగా అయ్యే నిమిత్తమై అనేక కర్మలు ఆచరించాలి. ऐसी स्थिति सबको प्राप्त होने वाली नहीं है. इसके लिए अनेक प्रकार से चिंतन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए.
अनुग्रह के पात्र बनने के लिए अनेक कर्म करने चाहिए। కనుకనే కృష్ణుడు స్థితప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణాన్ని గురించి చెప్పే సమయంలో ఈ విధమైనటువంటి దీంట్లో అర్జున కేవలము ఒక మనస్సు పైన దేహం పైన బుద్ధి పైన ఆధారపడినంత మాత్రం ఉన్న ప్రయోజనం లేదు. నా ఆజ్ఞను అనుసరించు, నా చింతన చేస్తూ నీ కర్తవ్య కర్మల్లో నీవు మునుగు. సర్వత్రా కూడాను ఏకత్వమైనటువంటి యొక్క దైవత్వం అనేటువంటిది నీకు గోచరం అవుతుంది. అనేకత్వంలోని ఏకత్వాన్ని దర్శించు. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మార్పులు నీ చిత్తమునకు కలిగినప్పుడే అందులో నా యొక్క హృదయము హత్తుకొని పోతుందన్నాడు. अतः स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में बताने के संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मात्र मन, देह और बुद्धि पर आधारित होने से कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी आज्ञा का अनुसरण करो, मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य एवं कर्मों में डूबे रहो, तब तुम्हें सर्वत्र एकता पूर्ण दिव्यता के दर्शन होंगे। अनेकता में निहित एकता का दर्शन करो। तुम्हारे चित्त में ऐसे परिवर्तनों के घटित होने पर उसमें मेरा हृदय समा जाएगा। మార్పు చెందినటువంటి చిత్తమే స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణం. ఎట్టి విషయం నందు కూడా నువ్వు చలనం కానటువంటి యొక్క తత్వమే స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణము. అన్నిటిని కూడా నువ్వు సహజ లక్షణంగా భావించుకోవాలి. అగ్నికి దహన శక్తి ఉన్నదంటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపడతాడా? ఐసు చల్లగా ఉందంటే ఎవరైనా విచారపడతాడా? ఐసుకు చల్లదనము దాని స్వభావము, అగ్నికి కాల్చేటువంటి దహన శక్తి దాని యొక్క స్వభావము, పుట్టిన దేహం అంతా గిట్టేటువంటిది దీని స్వభావము. अपरिवर्तनशील चित्त ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। प्रत्येक विषय में अविचल भाव से रहने की स्थिति ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। इन सब को सहज लक्षण मानना चाहिए। अग्नि में दाहने की शक्ति के बारे में सुनकर क्या कोई आश्चर्य में पड़ जाएगा? बर्फ का ठंडा होना सुनकर क्या कोई चिंतित होगा? बर्फ के लिए ठंडक उसका सहज स्वभाव है। अग्नि में दाहने की शक्ति का होना उसका स्वभाव है। जन्मी हुई देह के लिए विनष्ट होना इसका स्वभाव है। ఈ సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి సుఖ దుఃఖములకు ఏమాత్రం కూడాను గురికాడు. కనుకనే సర్వత్రా కూడాను సమచిత్తమును పెంచుకోమన్నాడు. ఈ సమచిత్తాన్ని పెంచుకునేటువంటి సమయం నందే ఈ దైవత్వమును చక్కగా భూతాకాశ చిత్తాకాశ చిదాకాశం యొక్క విచారణను ఘాటంగా జరపాలి, దీర్ఘంగా యోచించాలి. जो इस सत्य से अवगत होता है वह कदापि सुख और दुख से विचलित नहीं होता है। अतः सर्वत्र समचित्त को बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस समचित्त को बढ़ाने के दौरान ही इन दिव्यता, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश के बारे में तीव्र चिंतन करना चाहिए, देर तक विचार करना चाहिए। కొన్ని నిమిషంలో మనం భోంచేసి నిద్రపోతాము. నిద్రించిన తర్వాత ఎన్నెన్నో కలలు కంటాము. ఈ కలలు కన్న తర్వాత తిరిగి మేలుకుంటే ఏదీ లేదు. ఒక్క దినమునందే కొన్ని గంటల యందే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దృశ్యములు మార్పు చెందుతూ ఉన్నాయి. స్వప్నమునకు జాగ్రత్తకు భిన్న భేదములు అనేకంగా కనిపిస్తున్నాయి. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల లోపల మనం దేనిని నమ్మాలి, దేనిని విసర్జించాలి? भोजन करने के बाद कुछ ही मिनटों में हम सो जाते हैं। सोने के बाद कई सपने देखते हैं। सपने देखने के बाद जब जागते हैं तो कहीं कुछ भी नहीं है। एक ही दिन में कुछ ही घंटों के अंदर इतने सारे दृश्य बदलते जाते हैं। स्वप्न और जागृत में अनेक भिन्नताएं दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें किस पर विश्वास करना चाहिए, किसे त्यागना चाहिए? కనుకనే వేదాంతమునందు నేతి నేతి, నాట్ దిస్ నాట్ దిస్ నాట్ దిస్, ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదని, జాగ్రత్త నేను కాదు, స్వప్నం నేను కాదు, ఈ యొక్క నిద్ర నేను కాదు, దీనికి అతీతమైనటువంటి యొక్క సుషుప్తి స్థితి యందు దాటిన తర్వాతనే ఈ తురియావస్థనే నేను అనేటువంటి సత్యాన్ని బోధిస్తూ వచ్చింది. इसीलिए वेदांत में नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस कहा गया है। यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। जागृत मैं नहीं हूं,
स्वप्न मैं नहीं हूँ, यह निद्रा मैं नहीं हूँ। इनसे परे सुषुप्ति को पार करने के बाद विद्यमान तुरीयावस्था ही मैं हूँ के सत्य का उपदेश दिया गया है। ఎత్తి లేదనుచుంటిమో అద్ది కలదు, ఎత్తి కలదనుచుంటిమో అద్ది లేదు, ఉన్నదొక్కటి సర్వంబు ఎన్నటికిని అది ఏ బ్రహ్మంబు వాక్కున కలవి కాదు. కనుకనే వేదాంతం కూడాను యతో వాచ నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహా అన్నారు. మనసుకు కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి బుద్ధికి కానీ వాక్కును కానీ ఇది అసాధ్యమైనటువంటిది అన్నాడు. కనుక మనము చదివేది, వినేది, సాధన చేసేది, అనుభవించేది అన్ని కూడాను భూతాకాశం యొక్క లక్షణాలే. దీనిని ఆధారం చేసుకొని లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. जिसे नहीं है कहते वह है, जिसे हैं कहते वह नहीं है। विद्यमान है सर्वस्व एक ही, वही ब्रह्म है जो वाक से परे। इसीलिए पुरुष सूक्तम में यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कहा गया है। मन अथवा वाक अथवा बुद्धि से इसे नहीं जाना जा सकता है। अतः हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, साधना करते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब भूताकाश के ही लक्षण हैं। इसी को आधार बनाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। దీనిని సవికల్పం నిర్వికల్పం అని అన్నారు. సవికల్పం అంటే ఏమిటి, నిర్వికల్పం అంటే ఏమిటి? కనుక కొన్ని విషయం లోపల యోగాభ్యాసం గురించినటువంటి వారు సవికల్పమునకు కొన్ని అర్థములు, నిర్వికల్పమునకు కొన్ని అర్థములు చెప్తుంటారు. గుణములతో చేరినటువంటిదే సవికల్పం, గుణాతీతమైనటువంటిదే నిర్వికల్పం. इसी को सविकल्प और निर्विकल्प कहा गया है। सविकल्प का अर्थ क्या है? निर्विकल्प का अर्थ क्या है? कुछ विषयों के संदर्भ में योगाभ्यास से संबद्ध लोग सविकल्प के कुछ अर्थ बताते हैं और निर्विकल्प के कुछ अर्थ बताते हैं। जो गुणों से युक्त है वही सविकल्प है, जो गुणों से परे है वही निर्विकल्प है। త్రిగుణములకు అతీతమైనటువంటి స్థితిని పొందటమే ఒక నిర్వికల్పం. వికల్పం కలగనిదే నిర్వికల్పం, మార్పు లేనటువంటిదే నిర్వికల్పం, చలనము కానటువంటిదే నిర్వికల్పము. కనుకని అట్టి స్థితిని పొందటమే స్థితప్రజ్ఞుల యొక్క లక్షణం అన్నారు. त्रिगुणों से परे जो स्थिति है उसे प्राप्त करना ही निर्विकल्प है। जो विकल्प को अप्राप्य है वही निर्विकल्प है। जो अपरिवर्तनशील है वही निर्विकल्प है। जो अविचल है वही निर्विकल्प है। अतः ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। అయితే అర్జునుడు ఆ విధమైన స్థితిలో ఉండినాడా అని మనం సందేహించవచ్చు. అట్టి స్థితి యందు అర్జునుని ఉంచి సర్వకర్మలు కూడా అతని చేత ఆచరింపచేశాడు. జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు స్తంభించి కూర్చుంటే అజ్ఞానులకు ఆదర్శమైనటువంటిది చిక్కదు. ఒక చిన్న ఉదాహరణము, ఒక డ్రిల్ మాస్టర్ ఉంటుంటాడు. ఆ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తాడు, నాకు అన్నీ తెలిసిన ఊరికే కూర్చొని ఆడండి అంటే వాళ్ళు ఏం ఆడతారు? అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడైనా కానీ 1 2 3 తాను ఆడితేనే మరి పిల్లలు ఆడటానికి కూర్చుంటారు. हमें संदेह उत्पन्न होगा कि क्या अर्जुन वैसी स्थिति में थे? अर्जुन को वैसी स्थिति में रखकर उनसे सभी कर्म श्री कृष्ण ने करवाए। यदि ज्ञानी स्तंभित होकर बैठ जाए तो अज्ञानियों को आदर्श की प्राप्ति नहीं होगी। एक छोटा सा उदाहरण, एक ड्रिल मास्टर है। यदि वह इंस्ट्रक्टर कहे कि उसे सब कुछ पता है और फिर वह चुपचाप बैठकर बच्चों से कहे कि अरे तुम लोग खेलो, तो वे बेचारे क्या खेलेंगे? सब कुछ पता होने पर भी यदि वह 1 2 3 कहते हुए करके दिखाए तो बच्चे खेल पाएंगे। అదే విధంగానే స్థితప్రజ్ఞుడైనటువంటి వాడు ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని నిరూపించినప్పుడే ఇతరులు అనుసరించడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంటుంది.
కనుకనే అర్జున్ని ఆదర్శ పురుషునిగా తయారు చేశాడు కృష్ణుడు. అనేక పర్యాయములు నిమిత్త మాత్రం భవసరసాచి, నిన్ను నిమిత్త మాత్రంగా పెట్టుకొని లోకానికి అంత ఆదర్శాన్ని అందిస్తున్నానని చెప్పడంలో ఇది అంతరార్థం. इसी प्रकार एक स्थित प्रज्ञ द्वारा आदर्शपूर्ण जीवन के निरूपित करने पर ही अन्य लोगों के लिए अनुसरण करने का अवसर होगा. इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक आदर्श पुरुष बनाया. तुम्हें एक निमित्त बनाकर समूचे लोक को एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा हूं. कई बार कृष्ण का निमित्त मात्रम भव सव्यसाची कहने का अंतर्निहित अर्थ यही है. కనుక అర్జునుడు నిరంతరము కృష్ణుల్లోనే ఉంటున్నాడు. అతను పరిశుద్ధ హృదయుడు కనుకనే అతనికి అర్జునుడని పేరు. అనేక పర్యాయములు భారత 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 అన్నాడు. భారత అంటే భగవత్ రతి కలిగినటువంటి వాడు భారతుడు. ప్రకాశము, ప్రకాశాన్ని రచించినటువంటి వాడు భారతుడు. కనుక అతని పేరు యందే అన్ని విధమైనటువంటి అంతరార్థాలు కూడి ఉంటున్నాయి. अर्जुन सर्वदा श्री कृष्ण में ही रहे. अत्यंत विशुद्ध हृदय वाला होने के कारण ही उनका नाम अर्जुन पड़ा. श्री कृष्ण ने अनेक बार उन्हें भारता 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 कहा. जिसमें भगवत गति हो वही भारत है. भा अर्थात प्रकाश, प्रकाश की रचना करने के कारण ही वह भारत हुए. उनके नाम में ही सभी अंतर्निहित अर्थ हैं. కేవలం కృష్ణుని యొక్క ఆజ్ఞను శిరసావించటము, తాను చెప్పినటువంటి మార్గంను అనుసరించటమే. కనుకని మొట్టమొదటిని కరిష్యే వచనం తవా అని శరణాగతుడైనాడు. మీరు చెప్పినటువంటిది నేను చేస్తాను స్వామి, అంతకంటే నాకు ఇంక వేరే మార్గం లేదు. ఇది స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క ప్రధాన లక్షణం. केवल श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, उनके कथित मार्ग का अनुसरण करना ही अर्जुन का काम है. अतः सबसे पहले करिष्ये वचनम तव कहकर शरणागत हुए. उन्होंने कहा, स्वामी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा. इसके अतिरिक्त मेरे लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है. यही स्थित प्रज्ञ का प्रधान लक्षण है. నేను నాది అనేటువంటి భావము అభిమానం లేదు. ఈ మమత్వము అహంకారం అనేటువంటిది ఏమాత్రము అతనికి లేదు. ఈ అహంకార మమకారమును నిర్మూలము గావించుకొని దైవాజ్ఞ లోపల శిరసావించటమే స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణం. उनमें मैं और मेरा जैसी भावनाएं अथवा अभिमान नहीं है. ममत्व और अहंकार उनमें जरा भी नहीं है. इन ममत्व और अहंकार का उन्मूलन कर ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण है. కనుకని రెండవ అధ్యాయం లోపల స్థితప్రజ్ఞుని యొక్క లక్షణాన్ని ప్రత్యేకంగా గురించి అధికంగా చెప్తూ వచ్చాడు. ఊరికి చెప్పినంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదని ఈ భూతాకాశాన్ని, చిత్తాకాశాన్ని, చిదాకాశాన్ని చక్కగా వర్ణిస్తూ చెప్తూ వచ్చాడు. చక్కగా అర్థం చేసుకుని గుర్తించుకున్నటువంటి వాడు కనుక అర్జునుడు దాన్ని అనుభవిస్తూ వచ్చాడు. విశ్వ విరాట స్వరూపం అంటే ఏమిటి? ఇదే భూతాకాశం, ఇదే చిత్తాకాశం, ఇదే చిదాకాశం. మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని నిరూపించాడు కృష్ణుడు. इसीलिए द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने विशेषतः स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया. इतना बताने मात्र से प्रयोजन नहीं है, ऐसा मानकर श्री कृष्ण ने भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश का विशेष वर्णन करते हुए समझाया. श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को जानने और उससे अवगत होने के कारण अर्जुन उसका अनुभव प्राप्त करते आए. विश्व विराट स्वरूप का अर्थ क्या है? यह भूताकाश ही विश्व विराट स्वरूप है. यही चित्ताकाश है, यही चिदाकाश है. इन तीनों की एकता को श्री कृष्ण ने निरूपित किया. కనుకని విరాట స్వరూపాన్ని చూచినటువంటి అర్జునుడు కన్నులు మూసుకున్నప్పటికీ విరాట స్వరూపం కనిపిస్తూనే ఉండదు. అనగా కన్నులు తెరుచుకున్నప్పుడు కనిపించిందంతా కూడాను భూతాకాశం, కన్నులు మూసుకున్న తర్వాత కూడాను కనిపించేటువంటి చిత్తాకాశం. ఎక్కడ పోయినప్పుడు కూడా ఆ దృష్టి లోపల హృదయంలో ప్రింట్ అయిపోయినట్టు అయిపోయింది, అదే చిదాకాశం. विराट स्वरूप का दर्शन करने के कारण अर्जुन अपनी आंखें बंद करने पर भी विराट स्वरूप को देखते रहे. अर्थात
आँखों के खुली रहने पर दिखाई पड़ने वाला भूताकाश है। आँखों के बंद रहने पर भी दिखाई पड़ने वाला चित्ताकाश है। और जहाँ कहीं जाने पर भी वही दृष्टि हृदय में अंकित हो गई, वही चिदाकाश है। చిత్తమును కడిగినా పోలేదు ఈ యొక్క దృశ్యము. కాగితం పైన కొట్టినటువంటి ప్రింట్ కాగితం పోతే కూడాను ఆ ప్రింట్ పోదు. ఈ ప్రింట్ను కాగితాన్ని వేరు చేయడానికి సాధ్యం కాదు. కనుక అర్జునుడి యొక్క చిత్తము లోపల కృష్ణుడి యొక్క విశ్వవిరాట స్వరూపము హత్తుకొని పోయింది. అలాంటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి అర్జునుడి ఎన్ని రకములైనటువంటి దీంట్లో అయినా ప్రవేశపెట్టడంలో ఏమి తప్పు ఉండదు. సామాన్య మానవుని వలె అన్ని రంగాల్లో కూడా ప్రవేశిస్తున్నాడు అర్జునుడు. కానీ చిత్తము కృష్ణుని యొక్క పాదముల పైన, దేహము కృష్ణుని యొక్క ఆజ్ఞ లోపల. ఇది స్థితప్రజ్ఞుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆదర్శంగా నిరూపించాడు. धोने पर भी यह जाने वाला नहीं है। कागज पर छपा प्रिंट, उस कागज के फट जाने पर भी वह प्रिंट नहीं जाएगा। इस प्रिंट और कागज को अलग करना संभव नहीं है। अर्जुन के हृदय में श्री कृष्ण का विश्व विराट स्वरूप अंकित हो गया। ऐसे आदर्श पूर्ण अर्जुन को कितने ही मार्गों में प्रविष्ट कराने में कोई चूक नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति की भांति अर्जुन सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे थे, परंतु उनका चित्त श्री कृष्ण के चरणों में और उनकी देह श्री कृष्ण के आज्ञा पालन में। इसी को स्थित प्रज्ञ के प्रधान आदर्श के रूप में अर्जुन ने निरूपित किया। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत है भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अमेय देश पांडे जी। ओम श्री साई राम। भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान शिव की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। हर हर साई महादेवा। नंदी वाहना नाग भूषणा। फाल लोचना त्रिपुर संहारी। परम पुरुष शिव गंगाधारी। चंद्र कलाधर पार्वती रमणा। हर हर साई महादेवा। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे टू पंचम या सफेद दो का पंचम भी कह सकते हैं। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। शिव शिव शंभो
महेश गिरीशा। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। नंदिवाहना नागभूषणा। नंदिवाहना नागभूषणा। नंदिवाहना नागभूषणा। नंदिवाहना नागभूषणा। पाललोचना त्रिपुर संहारी। पाललोचना त्रिपुर संहारी। पाललोचना त्रिपुर संहारी। पाललोचना त्रिपुर संहारी। परम पुरुष शिव गंगाधारी। परम पुरुष शिव गंगाधारी। परम पुरुष शिव गंगाधारी। परम पुरुष शिव गंगाधारी। चंद्रकलाधर पार्वती रमणा। चंद्रकलाधर पार्वती रमणा। चंद्रकलाधर पार्वती रमणा। चंद्रकलाधर पार्वती रमणा। हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग बिहाग पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। भगवान के अनेक नाम हैं। इस सुंदर भजन में हम भगवान भोलेनाथ को शिव, शंभो, महेश, गिरीश, हर हर महादेव इत्यादि नामों से पुकार रहे हैं। भगवान शिव सर्वोच्च आनंद और वैराग्य की पराकाष्ठा हैं। सन 1973 में शिवरात्रि के अवसर पर उद्बोधन देते हुए भगवान बाबा ने शिव शब्द का बहुत ही सुंदर अर्थ बताया है। स्वामी कहते हैं, शिव का अर्थ है मंगलकारी, सर्व मंगलकारी, अनुग्रह से युक्त। इसलिए शिव के आगे श्री का प्रयोग नहीं करते। श्री द्योतक है मंगल का, लेकिन शिव शब्द ही मंगलकारी है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव के लिए नहीं किया जाता। स्वामी आगे कहते हैं, भगवान शिव के स्वरूप से ही हमें धैर्य और सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त होती है। उन्होंने अपने गले में हालाहल विष धारण किया है जो विध्वंसकारी है, और उनके जटाजूट में शीतल चंद्रमा शोभायमान है जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम हानिकारक प्रवृत्तियों को दूसरों से दूर रखें और सर्वदा दूसरों के कल्याण एवं परोपकार के मार्ग पर चलें। यदि मानव अपनी क्षमताओं का प्रयोग सिर्फ अपने विकास के लिए करता है और दुष्प्रवृत्तियों से दूसरों को नीचे गिराता है, तो यह उसके सर्वनाश का रास्ता है। इसलिए भगवान शिव हमें सर्व कल्याण का मार्ग दिखाते हैं।
शंभु शब्द को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। शम का अर्थ है शांति और भू का अर्थ है कारण। इस तरह शंभु का अर्थ हुआ जो शांति प्रदान करते हैं, यानी भगवान ही शांति और संपूर्ण आनंद के स्रोत हैं, जो कि हमारे भीतर ही है। एक बहुत ही रोमांचक अनुभव भाई विवेकानंद साहू ने हमारे साथ साझा किया, जो भगवान के संस्थान के पूर्व छात्र रह चुके हैं, और उनका यह अनुभव बताता है कि भगवान ही शंभु हैं, यानी जो हमारे भीतर आनंद के स्रोत हैं। कई सालों से भाई विवेकानंद प्रार्थना करते थे कि उनको भगवान से एकात्म होने का अनुभव प्राप्त हो। साल 2003 में जब वे MBA के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे थे, तब स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम के लिए रात भर एक ग्लोब बनाने में व्यस्त रहे। उस दिन करीब 4 बजे सवेरे ही वे सोने के लिए गए। करीब 4:30 बजे उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वे ना तो पूरी तरह जागृत हैं, ना ही पूरी तरह निद्रावस्था में हैं। लेकिन उन्होंने अपने शरीर को नीचे ज़मीन पर लेटा पाया। वे थोड़े से भयभीत हुए, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने आप को अपने ही शरीर से अलग पाया। उनको लगा जैसे उनकी मृत्यु हो गई है, और थोड़े ही क्षणों में उन्होंने अपने आप को आकाश की ओर जाते हुए और तारों और सूर्य आदि के बीच पाया। वे इस अनुभव की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्हें यह मालूम है कि उन्हें उस वक्त बहुत आनंद का अनुभव हुआ। वे उस आनंद का अनुभव कर रहे थे जिसका उल्लेख प्रायः स्वामी अपने उद्बोधन में करते हैं। एकाएक उन्होंने स्वामी को अपने सामने खड़ा पाया। भाई विवेकानंद स्पष्ट रूप से फिर से शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्वामी ने उनको प्रवेश करने के लिए कहा। स्वामी ने उनके सिर को पकड़ा और शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया। तब वे एकाएक उठकर बैठ गए। भाई विवेकानंद को लगा कि उन्होंने शुद्ध आनंद का अनुभव किया है, और वे थोड़ा दुखी थे कि फिर से वे इस सीमित शरीर के भीतर आ गए हैं। वे इस आनंद की अवस्था में करीब 2 घंटे तक रहे। उस समय उन्होंने स्वयं का संपूर्ण सृष्टि से एक होने का अनुभव किया, और सभी में वे स्वामी को देख पाए। बाद में जब वे मंदिर गए, तब उन्हें भगवान के द्वारा स्पर्श किए हुए चांदी के सिक्के आशीर्वाद स्वरूप सभी छात्रों को प्रसाद रूप में बांटने का अवसर प्राप्त हुआ। उस वक्त स्वामी ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, कैसा था? यह स्पष्ट है कि वह भाई विवेकानंद से प्रातः काल हुए आनंद के अनुभव का जिक्र कर रहे थे। भाई विवेकानंद ने कहा, धन्यवाद स्वामी। और स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह घटना स्पष्ट करती है कि स्वामी ही उस परम आनंद की अनुभूति हमें करा सकते हैं। इसलिए वे ही शंभु हैं, आनंद के परम धाम। हम कहते हैं गिरीशा। गिरीश का अर्थ है पर्वतों के स्वामी। यहाँ पर इसका तात्पर्य कैलाश पर्वत से है, जो भगवान शिव का दिव्य निवास स्थान है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? सन 1985 के शिवरात्रि उद्बोधन में भगवान ने कहा था, ऐसा कहा जाता है कि शिव कैलाश में रहते हैं, लेकिन कैलाश कहाँ पर है? कैलाश हमारे ही भीतर का आनंद है, अर्थात ईश्वर हमारे भीतर आनंद के कैलाश में निवास करते हैं। अगर हम उस आनंद की अनुभूति अपने भीतर करते हैं तो वही कैलाश है। लेकिन इस आनंद की अनुभूति को कैसे पा सकते हैं? जब हमारे अंदर शुद्धता, पवित्रता और स्थिरता बनी रहे, तब हृदय शांति और आनंद से भर उठता है। ऐसा हृदय कैलाश है, जिसके गर्भगृह में शिव का निवास है और शरीर मंदिर है। हर हर साई महादेवा। भगवान बाबा कहते हैं, हर शब्द का अर्थ होता है नाश करना या दूर करना। इसका दूसरा अर्थ आकर्षित करना या सामंजस्य व एकता स्थापित करना भी है। उन्होंने कहा है कि इन गुणों से भगवान स्वयं परिपूर्ण हैं। इस संदर्भ में हर का अर्थ हुआ वे भगवान जो हमारे अंदर के दुर्गुणों का नाश कर देते हैं, और वह आनंद स्वरूप ईश्वर हमें अपनी तरफ अपने प्रेम से आकर्षित करते हैं। वे जो इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं।
यहाँ पर हम आपके साथ भगवान बाबा द्वारा वर्णित एक बहुत ही सुंदर प्रसंग साझा करेंगे। 14 अप्रैल सन 1976 को दोपहर के समय भगवान सुंदरम में, जो कि चेन्नई में स्थित है, वहाँ ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में थे। तब उन्होंने श्री राया नी नगर, जो कि श्री सत्य साई संगठन तमिलनाडु के पूर्व प्रांताध्यक्ष रह चुके थे, जज मिस्टर दामोदर राव, जो कि तत्कालीन तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट थे, श्री अच्युतानंदम, ट्रस्टी श्री माणिक्य वसगम और श्री टी.जी. कृष्णमूर्ति को बुलाया। सब लोग स्वामी के चरण कमलों के इर्द गिर्द बैठ गए। भगवान ने सभी को पाद नमस्कार दिया और फिर थोड़ी देर वहाँ पर चुप्पी छाई रही। फिर भगवान ने एक गुलाबी रंग की जपमाला को दिखाते हुए पूछा, एमी दी, मतलब यह क्या है? किसी ने कहा रुद्राक्ष माला, लेकिन स्वामी ने कहा नहीं। और किसी ने कहा तुलसी मणि माला, उसके लिए भी स्वामी ने कहा नहीं। अगर बहुत नज़दीक से उसे देखें तो वह स्फटिक के मणि थे, जो गुलाबी रंग के धागे में पिरोए हुए थे। उस समय तक श्री टी.जी. कृष्णमूर्ति चुप थे, क्योंकि वे उन सब में सबसे छोटे थे। वे धीरे से बोले, यह जपमाला है जो ईसाई धर्म के लोग प्रयोग में लाते हैं। भगवान ने कहा, बिल्कुल ठीक। भगवान ने ऐसी जपमाला का सृजन क्यों किया? वह किसे देना चाहते थे? सबके भीतर ऐसे प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन सभी चुप थे। टी.जी. कृष्णमूर्ति जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, भगवान, आपने ऐसे किसके लिए सृजित किया है? भगवान ने कहा, यह पहले जहाँ थी उस स्थान से अब मेरे पास आ गई है। इसके पश्चात उन्होंने उसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। स्वामी ने कहा, फ्रांस में लियोन नामक जगह पर एक महिला रहती थी जिसका नाम था मिशेल। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, जिसमें उन्हें बहुत रुचि थी, और उस विषय पर डिग्री भी हासिल की। उन्होंने अद्वैत दर्शन के बारे में पढ़ा और उन्हें उसमें बहुत ही रुचि पैदा हुई। बाद में उनके माता पिता के जोर डालने पर उन्होंने विवाह कर लिया, लेकिन भगवान के विषय में उनके पति और उनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं, इसलिए उन दोनों के बीच तलाक हो गया। मिशेल ने अपने पति से कुछ नहीं लिया और जो भी संपत्ति उनके पास थी वह सब बेचकर पौंडीचेरी के फ्रेंच कॉलोनी में रहने लगी। वहाँ पर उन्होंने अद्वैत दर्शन का भी अध्ययन किया। वे नागपट्टनम गई। वहाँ पर एक मंदिर में एक बहुत ही बड़े भक्त पुजारी से मिली, जो तमिल में शिव पुराण के विषय में उद्बोधन दे रहे थे। उन्हें थोड़ा बहुत ही समझ में आया, लेकिन उससे वे बहुत प्रभावित हुई। उन्हें लगा कि अगर वे तमिल भाषा सीखती हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती हैं, इसलिए उन्होंने उस भाषा को सीखा। उनसे जितना हो सकता था उन्होंने उस मंदिर को दान दिया। उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव और बदलाव आए, जैसे वे शाकाहारी हो गई, साड़ी पहनने लगी। उन्होंने भारतीय पुरातन पद्धति से रसोई बनाना भी सीख लिया। खाना बनाकर शिव जी को भोग लगाती थी, फिर प्रसाद गरीबों में बांट देती थी। उस मंदिर के पुजारी ने उनसे कहा कि सही समय पर उनकी भेंट भगवान शिव से ज़रूर होगी, जो इस भूलोक में मानव रूप में अवतार ले चुके हैं। वे पुजारी सन 1935 में गुजर गए। मिशेल ने उनके अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा उठाया। पुजारी ने उनसे कहा, काशी भगवान शिव का धाम है और उन्हें वहाँ 2 साल के पश्चात जाना चाहिए। वे भगवान शिव के मनुष्य रूप से मिलना चाहती थी, इसलिए काशी चली गई। वहाँ उनकी मुलाकात कई साधुओं से हुई, लेकिन उनकी जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई। एक साधु ने कहा, तुम पौंडीचेरी वापस चली जाओ और तुम्हें अवतार से निमंत्रण प्राप्त होगा। वे वापस लौट गई और भगवान शिव का नाम जप तीव्रता से करने लगी। वे बाहरी लोगों से ज़्यादा मुलाकात नहीं करती थी और सिर्फ उनसे ही मिलती थी जिनको आध्यात्मिकता में रुचि थी। जिसने भी उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखा उसने उन्हें पागल कहा। जब भगवान यह कहानी सुनाते हुए इस बिंदु पर पहुँचे तो उन्होंने भी कहा, शिव पिच्ची, मतलब
वे शिव के पीछे पागल थी। सन 1969 में एक आदमी मिशेल के पास आया और उसने कहा कि भगवान शिव आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्ती नामक गांव में अवतार ले चुके हैं। वे तुरंत ही पुट्टपर्ती आ गई। यूरोपियन होने के नाते वे यहाँ पर कुछ बुनियादी सुविधाएं चाहती थी, लेकिन वह प्राप्त नहीं हुई। फिर भी वे 3 साल तक भगवान शिव के दर्शन के लिए यहीं पर रुकी रही। साल ऐसे ही बीतते गए और उन्होंने आशा छोड़ दी। उनके भीतर कई प्रश्न उठने लगे जो उन्हें परेशान करते थे, जैसे क्या सचमुच भगवान शिव मानव अवतार में अवतरित हुए हैं? क्या मुझे उनके दर्शन होंगे? उनको यह सोचकर डर लगता था कि भगवान की उनकी खोज व्यर्थ ना चली जाए और वो एक गहरे अवसाद की शिकार हो गई। जब वे अवसाद के शिखर पर पहुंची तब उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे सूरज के उगने के पहले का गहरा अंधकार। केवल भगवान ही जानते थे उस आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा। तब तक भगवान ने उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक दिन बुला ही लिया। इंटरव्यू के कमरे में उन्होंने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ देखो, यही भगवान शिव हैं। उन्होंने जब नज़रें उठाकर देखी तो वहाँ पर उन्हें भगवान बाबा की जगह भगवान शिव दिखाई दिए। अब तक उन्होंने भगवान शिव के बारे में कथा सुनी थी, नाम जप किया था और उनके स्वरूप की केवल कल्पना ही की थी, लेकिन अब उन्हें उनके साक्षात दर्शन हो रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वे परमानंद में डूब गई। तब भगवान ने उनके लिए स्फटिक की जपमाला सृजित की और उन्हें देते हुए कहा, इस जपमाला से शिव पंचाक्षरी मंत्र जो कि तुम्हें पुजारी ने सिखाया था उसे जपते रहना। स्वामी ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा और आश्वासित किया कि जब उनका आखिरी समय आएगा तो उन्हें वे अपने हृदय में स्थान देंगे। वह महिला वापस पौंडीचेरी चली गई और भगवान के कहे अनुसार साधना करती रही। 12 अप्रैल सन 1976 को वे भगवान के चरणों में लीन हो गई। उनकी इच्छा अनुसार उनके शरीर का दाह संस्कार हो गया और भगवान इस घटना के बारे में 14 अप्रैल को बता रहे थे। वे मिशेल के जाने के 3 दिन पश्चात इस घटना का विवरण दे रहे थे। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने उन्हें आश्वासित किया था, वचन दिया था, वे मेरे चरणों में लीन हो गई हैं और जो जपमाला मैंने उन्हें दी थी वह भी मेरे पास वापस आ गई है। वह 5 लोग जो बाबा के समीप बैठकर यह घटना सुन रहे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उस वक्त वे किसी दूसरी दुनिया में थे। मिशेल ने भगवान की आवाज़ को सुना और सन 1928 में भारत आई। उस समय हमारे भगवान सिर्फ 2 साल के बच्चे थे। ये यह दर्शाता है कि वे देश व काल के परे हैं और अपने प्यारे भक्तों को अपनी तरफ खींचने के लिए आयु उनके लिए कोई बाधा नहीं है। भगवान विदेशियों को फार नियर कहते हैं क्योंकि उनकी भक्ति में बहुत तीव्रता है। वे प्रायः कहते हैं कि वे मधुमक्खी के समान हैं जो बहुत दूर से आकर शहद को ग्रहण कर वापस चली जाती हैं। मिशेल भी उन मधुमक्खियों में से एक मधुमक्खी थी जिनकी पूरी एकाग्रता सिर्फ भगवान को पाने में लगी थी। नंदिवाहना नागभूषणा। भगवान ने 24 मई सन 1992 को वृंदावन कैंपस के इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में उद्बोधन देते हुए कहा, आप लोगों ने देखा होगा शिव जी के मंदिर में नंदी शिव जी के सामने होते हैं। उसका क्या अर्थ है? प्रायः लोग कहते हैं यह नंदी ईश्वर का वाहन है, लेकिन क्या उनको इससे बेहतर वाहन नहीं मिल सकता था? यह गलत धारणा है। सत्य तो यह है कि जैसे लिंग शिव का प्रतीक है, वैसे ही नंदी जीव का द्योतक है। जैसे नंदी अपना पूरा ध्यान सिर्फ ईश्वर पर ही केंद्रित करता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपना ध्यान प्रकृति से हटाकर पूरी तरह ईश्वर में लगाना चाहिए। इसके और भी कई अर्थ हैं। उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि शिव और नंदी के बीच किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए, और जब शिव के दर्शन करने हों तो
तो नंदी के दोनों कानों के बीच से उन्हें देखना चाहिए। इसका कारण है कि हमें एक साधक के तौर पर अपनी श्रवण इंद्रियों का उपयोग भगवान की महिमा को सुनने के लिए करना चाहिए, जिससे बैल रूपी पाश्विक प्रवृत्ति दिव्यता में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्ति ईश्वर में विलीन भी हो जाता है। इसलिए नंदी को नंदीश्वर कहते हैं। यह हमें संकेत देता है कि मनुष्य को नंदी की तरह भगवान में लीन होने की चेष्टा करनी चाहिए। कोई भी किसी पशु पर कब सवार हो सकता है? जब वह पशु उसके अधीन हो। इसलिए भगवान शिव को नंदी वाहना कहते हैं, क्योंकि उनके पास क्रोध, ईर्ष्या आदि पाश्विक गुणों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता है। भगवान ने यह भी कहा, शिव जी जिस बैल पर सवार होते हैं वह पशु नहीं है, बल्कि उसके 4 पैर सत्य, धर्म, शांति और प्रेम का प्रतीक हैं। धर्मवाहिनी में भगवान ने कहा है कि नंदी के 2 सींग के बीच में से शिव के दर्शन करते हैं, और लोग कहते हैं कि दर्शन के लिए यह पद्धति अन्य पद्धतियों से अधिक पवित्र है। लेकिन इसका महत्व यह है कि हमें प्रत्येक जीव के अंदर शिव को देखना है, यानी जीव और शिव, बैल रूपी पशु और पशुपति अर्थात शिव दोनों एक ही हैं। नंदी और ईश्वर दोनों सभी जीवों के भगवान हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर और नंदीश्वर कहा जाता है। वे दोनों एक ही चैतन्य की 2 अभिव्यक्तियां हैं। जब बंधन में हो तो वह नंदी, और जब मुक्त हो जाए और भगवान हो जाए तो ईश्वर। जब जीव भगवान से एक हो जाता है तो वह आदरणीय और पूजनीय हो जाता है। भगवान को नागभूषणा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने नाग को अपने गले का आभूषण बनाया है। नाग यहाँ पर दुर्गुणों, दुर्वासनाओं और बुरी शक्तियों का द्योतक है, जिसे सिर्फ शिव जी ही अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। नाग मानसिक शक्तियों को भी दर्शाता है, जिसे शिव जी अपने नियंत्रण में रखते हैं। कुंडली मार कर बैठा हुआ नाग कुंडलिनी शक्ति यानी सुप्त आध्यात्मिक शक्ति का द्योतक है, जो सबके अंदर विद्यमान है। पाललोचना त्रिपुर संहारी। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान शंकर के माथे अर्थात भाल पर एक तीसरा नेत्र अर्थात लोचन है, और इसलिए उन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। भगवान शिव ने देवताओं और सृष्टि के उद्धार हेतु त्रिपुरासुर नामक 3 शहरों में रहने वाले 3 भयावह राक्षसों का संहार किया था, जिस कारण शंकर जी को त्रिपुर संहारी नाम से भी जाना जाता है। परम पुरुष शिव गंगाधारी। श्री राम कथा रसवाहिनी में भगवान बाबा ने गंगा जी का महत्व बताते हुए बताया है कि कैसे वे धरती पर लाई गई। भगवान बाबा ने कहा, गंगा की धारा परम पवित्र और दिव्य है। गंगा मैया का अमृत रूपी जल अमरता प्रदान करता है। गंगा मैया वह सब कुछ प्रदान करती हैं जो मानव के लिए कल्याणकारी है। त्रेता युग में सगर नामक एक राजा थे, जो भगवान राम के पूर्वज थे। कपिल मुनि के श्राप के कारण राजा सगर के पुत्र जलकर राख हो गए। किसी आदरणीय विद्वान ने कहा कि यदि माँ गंगा उनका स्पर्श करें तो उन्हें फिर से जीवित किया जा सकता है। राजा सगर के बाद कई राजाओं ने इसका प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए, और राजा सगर के वंश में ही भागीरथ हुए, जिन्होंने भी यह प्रयास जारी रखा और उसमें सफलता भी प्राप्त की। भागीरथ ने घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। भगवान ने उनसे पूछा उन्हें क्या चाहिए। जब भागीरथ ने अपनी इच्छा व्यक्त की तो भगवान ने कहा कि गंगा जी की धारा बहुत विस्तृत और तीव्र है, जिसे स्वर्ग से यदि भूमि पर लाया जाए तो भूमि उसके प्रभाव को सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए गंगा जी की धारा के प्रपात को यदि पहले शिव जी अपनी जटाओं में संभाल लेते हैं तो फिर गंगा जी थोड़ी धीमी गति से भूमि पर प्रवाहित हो सकती हैं। इसको सुनने के पश्चात भागीरथ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव
धरती पर आए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाजूट में धारण किया। गंगा जी भगवान शिव की जटा से 7 धाराओं में विभाजित होकर बहने लगी। उसमें से एक धारा भागीरथ के बताए मार्ग पर प्रवाहित हुई। इस तरह से भागीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने में सक्षम हुए। माँ गंगा का नाम भागीरथी भी है क्योंकि उन्हें राजा भागीरथ स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार लाए थे और परम परमेश्वर शिव परम पावन गंगा मैया को धारण करने के कारण गंगाधारी भी कहलाते हैं। चंद्रकलाधर पार्वती रमणा। माँ पार्वती को आनंद देने वाले भगवान शिव अपनी जटाओं में अर्ध चंद्रमा भी धारण करते हैं। सन 1972 में हैदराबाद में उद्बोधन देते हुए भगवान बाबा कहते हैं कि शिव जी अपनी जटाओं में अर्धचंद्र धारण करते हैं, जिससे सौम्य चंद्रमा की किरणें यात्रियों का पथ प्रदर्शन कर भगवान तक पहुंचने की यात्रा की दुर्गमता को कम कर सकें। वे चारों तरफ शांति और आनंद का विस्तार करते हैं। चंद्रमा हमारे मन को भी दर्शाता है और मन भगवान शिव के पूर्ण नियंत्रण में है और वे सर्वदा आनंदित रहते हैं। उसी तरह हम भी अपने मन को नियंत्रण में करें और अपने भीतर के आनंद को पाएं। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। शिव शंभो महेश गिरीशा। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। शिव शंभो महेश गिरीशा। हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। ओम हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। शिव शंभो महेश गिरीशा। नंदिवाहना नागभूषणा। नंदिवाहना नागभूषणा। नंदिवाहना नागभूषणा। नंदिवाहना नागभूषणा। हाललोचना त्रिपुर संहारी। हाललोचना त्रिपुर संहारी। हाललोचना त्रिपुर संहारी। हाललोचना त्रिपुर संहारी। परम पुरुष शिव गंगाधारी। परम पुरुष शिव गंगाधारी। परम पुरुष शिव गंगाधारी। परम पुरुष शिव गंगाधारी। चंद्रकलाधर पार्वती रमणा। चंद्रकलाधर पार्वती रमणा। चंद्रकलाधर पार्वती रमणा। चंद्रकलाधर पार्वती रमणा। हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। ओम हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। शिव शंभो महेश गिरीशा। हर हर साई महादेवा। हर हर साई महादेवा। शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। शिव शंभो महेश गिरीशा। नंदिवाहना नागभूषणा। नंदिवाहना नागभूषणा। हाललोचना त्रिपुर संहारी। हाललोचना त्रिपुर
शिव शिव शंभो महेश गिरीशा। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।